Hello my friends and viewers, this is Kavita Sharma from Purely Electrical channel. So I have come up with another topic from Fundamentals of Electrical Engineering. That is the topic is effect of AC on purely capacitive circuit, right? So what does this mean? That means we have an electrical circuit that comprises of only a single capacitor with an applied AC voltage, right? So since the circuit is closed, the current I will start flowing through it, right? So we'll have to determine the values and relation between voltage and current, right? So as we know, the expression of voltage, sinusoidal voltage at any instantaneous voltage, right, can be written as V small v is equal to Vm sine of omega t, right? So the charge on a capacitor that will be accumulated at any particular instant will be given by Q is equal to Cv, where C is the capacitance of the capacitor and the small v is the instantaneous voltage, right, that we have applied. So substituting the value of voltage from first equation, we get Q is equal to C Vm sine of omega t, right? As we also know that current is equal to current is defined as the rate of flow of charge, right? So it can be written as dq by dt. So substituting the value of Q from equation number 2, we get d by dt is equal to C Vm sine d by dt C Vm sine of omega t, right? So since C is constant, Vm is constant, we take them out and differential में हमारे पास रह जाएगा sin of omega t. So differential of sin omega t is always equal to omega cos omega t, right? साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा होता है। इसके साथ हमारे पास टाइम के साथ ओमेगा मल्टीप्लाइड है तो ओमेगा बाहर आ गया, राइट? अब हमने क्या करना है, वी हैव टू कोरिलेट करंट एंड वोल्टेज। सो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस को भी हमें साइन में कन्वर्ट करना है। सो दैट कैन बी रिटन एज अगेन यूजिंग अनदर आइडेंटिटी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, राइट? चलिए, अब हमारे पास ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई है, राइट? अब हम कह रहे हैं कि दिस वैल्यू अगर इसमें से मेरे पास ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, अगर मेरे पास साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 किसी इंस्टेंट पे जब ये 1 होगा, सो व्हाट विल कम, द करंट विल बी सी वी एम इंटू ओमेगा एंड सिंस दिस इज कांस्टेंट, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू इज देयर ऑफ द वोल्टेज, तो मेरे पास करंट क्या हो जाएगा, इट विल बी मैक्सिमम. सो वी कैन राइट करंट विल बी मैक्सिमम in a capacitive circuit when this term sin of omega t plus pi by 2 is unity, right? चलिए, अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया एज अ मैक्सिमम करंट. सो वी कैन राइट इट एज इंस्टेंटेनियस करंट can be written as Im into sin of omega t plus pi by 2. So let this be equation number 3. So correlating, comparing equation number 1 and 3, we what will get that current is leading the voltage, ये आगे चल रहा है, leading the voltage by pi by 2, right? 90 डिग्री आगे चल रहा है. चलिए, अब हम इसको ग्राफ से समझते हैं. सो लेट दिस बी द ग्राफ ऑफ वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज V, राइट? अब मेरे पास जो करंट आया था दैट इज लीडिंग, तो इसका मतलब है कि जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा Vm, ठीक है, जब इसने 90 डिग्री पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, वोल्टेज नहीं, तो जो करंट है वो 90 डिग्री पहले ही अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर चुका होगा. सो वी कैन ड्रॉ द वेव शेप लाइक दिस Im, राइट? तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई और ये डॉटेड वेव शेप इसकी वेव शेप हो गई करंट की, राइट? इंस्टेंटेनियस करंट की. सो मेरे पास यहाँ से ग्राफिकली मैंने प्रूव कर लिया और इसको ड्रॉ कर लिया, वोल्टेज एंड करंट की वेव शेप को इन अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, राइट? अभी हमने लिखा था कि मैक्सिमम करंट विल बी इक्वल टू सी इंटू वी एम इंटू ओमेगा. सो यहाँ से हम एक अनदर टर्म डिराइव करने वाले हैं, दैट इज XC, राइट? सो हाउ वी कैन डिराइव दैट, Vm को ऊपर रखा एंड C ओमेगा को हमने डिनोमिनेटर में लेके गए 1 बाय C ओमेगा करके. सो व्हाट विल गेट Vm बाय 1 बाय 2 पाई FC, वेयर ओमेगा इज 1 बाय 2 पाई F, राइट? तो हमारे पास ये आ गई टर्म Vm बाय 1 बाय C ओमेगा, राइट? अब हम इसको लिख रहे हैं 1 बाय C ओमेगा को इक्वल टू XC, right? This is another term that is called as capacitive reactance. हम इसको कहते हैं capacitive reactance. It is again opposition offered by the capacitor to flow of alternating current through it, right? चलिए, so XC comes out to be 1 by omega C. यहाँ से हमने लिख लिया Im can be written as, जो कि हमारे पास था C Vm into omega, that can be written as Vm by XC, right? अब हमने निकालनी है इसमें
पावर कंज्यूम्ड ओवर अ कंप्लीट साइकिल। तो उसके लिए मुझे इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी पड़ेगी। दैट इंस्टेंटेनियस पावर विल बी इक्वल टू स्मॉल p विल बी इक्वल टू स्मॉल v इंटू स्मॉल i, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 से हमने दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। सो इट वाज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। चलिए आई एम वी एम जो है हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 दैट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ ओमेगा टी, राइट। एंड नाउ टू मेक एन अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको विल हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, सो दैट अब मेरे पास 2 जो है डिनोमिनेटर वाला वो तो मैंने बाहर ले लिया, एंड इट विल कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी इज द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ से मेरे पास आ गया, इसको मैं और फर्दर लिखूंगी तो इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कैन बी रिटन एज साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी, राइट। अब मेरे पास ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल। अब जब मेरे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 पाई। पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो विल गेट Vm I m by 2 इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई, और ये जो हमारे पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। सो ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर अ कंप्लीट साइकिल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि अब ये जो टर्म है पावर की, ये कांस्टेंट टर्म के साथ हमारे पास ये साइनोसॉइडल टर्म लग गई। सो अब ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी बन गई है इससे, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एवरेज पावर विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। चलिए अब हम इसको ग्राफिकली प्रूव करते हैं। जब हम इसको ग्राफिकली प्रूव करेंगे, सी अभी हमने ग्राफ्स बनाए थे v का और i का। सो 0 से 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री कंप्लीट वन साइकिल के लिए, राइट। करंट की वेव शेप ऐसे जाएगी। तो यहाँ पे देखो करंट क्या है, करंट इज पॉजिटिव वेयर एज वोल्टेज इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो मेरे पास पावर की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी ग्रेटर देन, है ना, इन दोनों के मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल है तो इन दोनों का मल्टीपल है और इनसे बड़ी होगी वैल्यू। एंड सिंस इट बोथ आर पॉजिटिव टर्म्स, तो मेरे पास जो पावर का कर्व आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, राइट। अब हम 90 to 180 डिग्री देखते हैं। वोल्टेज इज पॉजिटिव वेयर एज करंट इज नेगेटिव, तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पावर विल बी नेगेटिव, राइट। तो ये मेरे पास पावर का कर्व आ गया, राइट। फ्रॉम 180 to 270 करंट इज ऑल्सो नेगेटिव वेयर एज वोल्टेज इज ऑल्सो नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, सो पावर कम आउट टू बी पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास पावर पॉजिटिव आ गई। From 270 to 360, one of the term that is current is positive whereas voltage is negative. तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, राइट। सो अब मैंने देखा कि ओवर अ कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वेवफॉर्म हमारे पास क्या है, जो पावर है इट इज कंप्लीटिंग 2 कंप्लीट साइकिल्स, राइट। और दोनों बार दो कंप्लीट साइकिल कर रही है, जिसमें 2 बार पॉजिटिव वैल्यूज है, 2 बार नेगेटिव वैल्यूज हैं। सो यहाँ से भी हम देख सकते हैं जितनी बार इसने पॉजिटिव वैल्यू अटेन की उतनी बार इसने नेगेटिव वैल्यूज भी अटेन की ओवर अ कंप्लीट वन साइकिल ऑफ अ वोल्टेज, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गई, जितनी मैं पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करूंगी और जितनी नेगेटिव वैल्यूज ऐड होंगी उसमें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मेरे पास एवरेज पावर कंज्यूम्ड will be equal to 0. So from here we can conclude that in a purely capacitive circuit, current leads the voltage by exactly 90 degree, and the average power consumed over a complete cycle is always equal to 0. And from here we have derived another term that is Xc, which is equal to 1 by C omega, and omega is omega is 2 pi f, right. So this is called as capacitive reactance, which is the operation offered by the capacitor to allow the current to alternating current to pass through it, right. I hope you like my video. Please like and share and subscribe my channel. Thank you.